अमर रहे शहीद सरकार, अमर रहे सम्मान शहीदों को सम्मान देंगे। A strong response from the top officer of the CRPF has come. It's a very sad day that 2 men from CRPF were killed in the line of duty. This will evoke a strong response. Kuldeep Singh also spoke very strongly about it. One needs to understand that a Rubicon has been crossed by these anti-social militant elements. Fighting with each other is one thing, but to attack the security forces and to attack the people who protect the people is completely inviting a strong countermeasure. Despite that, a lot of restraint is being shown by the forces. ये हम सभी के लिए बड़ा दुखद था और पिछले 1 वर्ष से सीआरपीएफ की काफी संख्या में यहाँ डिप्लॉयमेंट रही है और बहुत तरह की ड्यूटीज हम करते रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे दूर दराज के कैंप के ऊपर यूजीज ने अटैक किया और कैंप का लोकेशन ऐसा कुछ था कि उनको मदद मिल गई कैंप के अंदर घुसकर हमें नुकसान पहुंचाने में। इस बात का हमें दुख है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम पता करेंगे कौन थे और उनको बहुत जल्द विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। If you analyze the way the top CRPF cop is speaking, he's still reconciliatory. He's differentiating between society and few miscreants. But the fact of the matter is that Manipur's territorial integrity is sacrosanct, and I don't think any government will take it lying down. The response from the state government of Manipur is going to be very, very severe. Because I, as a journalist, is of the view that this is intolerable. A red line has been crossed by the militants and they need to be taught a lesson in whatever way. There are a couple of things which are non-negotiable. Manipur's territorial integrity, the mighty culture, it's non-negotiable. Cookies are part of the Manipuri society, but outsiders who are trying to fight a war, sowing poppy in the hill areas, they need to be brought to the book. Manipur is an inviting society. Manipur is a society which has Meiteis, Cookies, Nagas, everyone. But we need to understand that people who have just migrated from Myanmar are not Indian citizens. Poppy cultivation in hill area is absolutely non-negotiable. What Biren Singh has done is a good job in those hill areas to ensure that the poppy cultivation is destroyed. But to attack the security forces is something which needs to be taken very, very seriously, because when you attack the security forces, you are trying to hit the morale. Look what's happening in the Kashmir theatre when people go to their respective homes on holidays or festivals or marriages. Terrorists attack them. It is to hit the morale at the forces. This red line has been crossed for the first time. It should not be allowed to be crossed the second time. A swift action is expected. A strong action is expected. And a strong action should send shivers down the spine of the anti-social elements who are trying to challenge India's sovereignty, who are trying to hit back at India's security forces. And I'm sure Indian security forces will teach them a good lesson. जहाँ तक आप मणिपुर के प्रॉब्लम की बात करते हैं, मणिपुर का प्रॉब्लम कई डिकेड्स से है और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ कई डिकेड्स से 80s से है। और तब से हम लोग, अब मैं अपने सीआरपीएफ की बात करता हूँ, एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस भी करते आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी करते आ रहे हैं और वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी भी करते आ रहे हैं। साथ ही साथ वीआईपी सिक्योरिटी भी देखते आ रहे हैं। ये 3 मई 2023 से पहले की मैं बात करता हूँ। उसके बाद से जब एथनिक क्लासेस हुए, फिर अचानक से सीआरपीएफ
कि काफ़ी कंपनीज इंडक्ट हुई और सबसे पहला हमारा रोल ये था कि जो इतनी क्लासेस हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आपस में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर वार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने की कोशिश की। जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ, इसमें ये बहुत बड़ा गैम्बिट है। इसमें फ्लैग मार्च से लेके, पेट्रोलिंग से लेके, नाका लगाने से लेके, भीड़ कंट्रोल करना, ये सब कुछ आता है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना कि नहीं, ये फोर्सेज आ गई हैं, अब आपके खिलाफ कोई अटेम्प्ट नहीं होगा और अब शांति बहाल होगी। फिर से मार्केट की दुकानों को खुलवाना, ट्रैफिक को नॉर्मल करना, इन सारी चीजों में हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ कई ऐसे पुलिस स्टेशंस थे, कई ऐसे इंस्टॉलेशंस थे जिनको खतरा था, वहां पे भी हमने उनको सिक्योरिटी देने का काम किया और इसमें सीआरपीएफ का काफी बड़ा योगदान रहा है पिछले 1 वर्ष से। जी, इलेक्शंस में भी सीआरपीएफ का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट था। जितनी भी फोर्सेज यहाँ डिप्लॉय की गई सेंटर की, सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का ही था और इलेक्शन के टाइम पे हमारी फोर्सेज कुछ एरिया से थिन आउट हो गई थी, इलेक्शंस के लिए चली गई थी बूथ के ऊपर, और इसमें इन लोगों को थोड़ा मौका मिल गया। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको ऐसा लगा कि डिप्लीटेड फोर्स है, स्ट्रेंथ कम हो गया है, तो शायद इस मौके का भी फायदा उठाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, पता करेंगे कौन सा ग्रुप था, कौन से लोग थे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, हम उन तक पहुंचेंगे और उनको बहुत जल्दी उनके किए की सजा मिलेगी। सर, अगर अभी तक की बात की जाए, जब एथनिक क्लासेस शुरू हुए तो बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। उस समय जो हम लोगों ने काम किया, हमारे 6 कैंप्स होते थे इम्फाल में। उन 6 कैंप्स में लगभग 13,500 डिस्प्लेस्ड पर्सन्स आए थे। उनको हमने उस समय सिर्फ शेल्टर ही नहीं दिया, उनके खान पान की व्यवस्था की, उनके मेडिकल केयर को इंश्योर किया।